Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Change in Arts and Architecture. Now what we will study in this chapter about the changes in performing arts, the developments in painting and art, changes in Indian art and development of the press and about a case study of the architecture in Mumbai and Chennai. The period after the decline of Mughal Empire saw major changes in art, architecture and literature. जब मुगल पीरियड डिक्लाइन हुआ उसके बाद काफ़ी आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में चेंजेस आए. मैनी न्यू रीजनल सेंटर्स emerged as centers of political power and this provided opportunities for the growth of various regional styles. By the beginning of 19th century, the British had firmly established their rule and under their influence, new Western technologies were introduced. William Jones realized the importance of studying Indian art in order to understand Indian culture and society. He founded the Asiatic Society at Calcutta in 1784. अब बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे 19th सेंचुरी में, ठीक है. तो ब्रिटिश रूल उस टाइम आ गया था, तो विलियम जोन्स ने रियलाइज किया द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इंडियन आर्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी. सो ही फाउंडेड द Asiatic Society at Calcutta. Many scholars became its member and began to study Indian art, architecture, literature, philosophy, science, etc. और बहुत सारे लोग इस कल्चर के, ठीक है, दैट इज एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर बन गए और उन्होंने इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर इन सबको समझना, पढ़ना शुरू किया. ही गोट मैनी एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया. नेक्स्ट इज चेंजेस इन परफॉर्मिंग आर्ट्स. आर्ट्स में क्या चेंजेस हुए? फर्स्ट इज इन म्यूजिक. After the decline of Mughal Empire, like all other art forms, there was a change in the rich musical tradition of India. और बहुत सारे changes आए. ऐसे ही music में भी काफ़ी changes आए इंडिया में, especially हिंदुस्तानी music. However, the 19th century saw the emergence of Madras as the capital of Carnatic music in South. और इस तरीके से South में Carnatic music का center देखा गया मद्रास. And Hindustani music was also revived by famous musicians like Pandit Vishnu Digambar Pulashkar and Chhatru Pandit Vishnu Narayan Bhatkande and Rabindranath Tagore evolved a new style in Bengal music which came to be known as Rabindra Sangeet. इस तरीके से अलग अलग जो फेमस स्कॉलर थे, म्यूजिशियन थे, उन्होंने एक नया म्यूजिक का फॉर्म इंट्रोड्यूस किया. इट इज़ एन अमलगेशन ऑफ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल. और ये मिक्सचर था किसका? क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक और फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल का. With the establishment of British rule came Western music and instruments. जैसे जैसे ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वैसे वैसे वेस्टर्न म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट भी इंडिया में आए. The Indians, while maintaining their own tradition, adopted some instrument like violin and clarinet to suit the demand of Indian music, and the harmonium, which was based on the principle of piano, is also an Indian adaptation of an essentially Western instrument. और कुछ Western instrument को जो Indian music के साथ सूट होता था, Indian musician ने adopt भी किया. Now next is dance. India has had a long tradition and dancers and dance styles since the ancient period. India was rich in tradition of dance. Okay, so in the late 19th and 20th centuries, a string of classical dances from India became prominent. Among them, Uday Shankar was a leading figure. और इस टाइम पर बहुत सारे क्लासिकल डांस जो हैं वो फेमस हुए, जिसमें से उदय शंकर जो थे वो काफ़ी फेमस थे. उदय शंकर is regarded as the pioneer of modern dance in India. उदय शंकर को founder of modern dance in India भी बोला जाता है. A world renowned
Indian dancer and choreographer, he was best known for adapting Western theatrical techniques to traditional Indian classical dance, combining elements of Indian classical folk and tribal dance form. उन्होंने वेस्टर्न थिएट्रिकल को टेक्निक्स को ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल डांस के साथ मिक्स किया, उसके साथ इंडियन क्लासिकल फोक एंड ट्राइबल डांस, इन सब को एक मिक्सचर दिया. His great work led to the development of modern Indian dance, और इससे मॉडर्न इंडियन डांस सामने आया, which became popular in India, Europe and the United States in 1920 and 1930s. Thus, it was उदय शंकर who placed Indian dance on the world map. तो हम कह सकते हैं उदय शंकर जो फेमस डांसर थे वो उन्होंने इंडिया के डांस को वर्ल्ड में सबके सामने वो लेकर आए. ठीक है, ही प्लेस्ड इंडियन डांस ऑन द वर्ल्ड मैप. लेटर अ नंबर ऑफ डांसर हु फॉलोड इन हिज फुटस्टेप्स कैप्चर्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन. और उनके बाद बहुत सारे डांसर जैसे बिरजू महाराज, यामिनी कृष्णमूर्ति उनके फुटस्टेप पर चले और डांस को फेमस बनाया. नेक्स्ट इज बंगाली लिटरेचर. 19th century was the period when the actual literacy renaissance of Bengali took place, and Michael Madhusudan Datta and Bankim Chandra Chatterjee were the founder of the modern age in Bengali literature. Okay, so these are the founders of Bengali literature. Madhusudan was the first Bengali poet to write in blank verse who combined Western influences with the essence of Indian literature. And Madhusudan जो थे, who was the फर्स्ट बंगाली पोइट जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स लिखे जिसमें इंग्लिश मॉडर्न स्टाइल को हिंदी के साथ कंपोज किया गया, मिक्स किया गया. ठीक है, हिज मेघनाथ वध and Meghnad Vaz Kavya written in blank verse has the same flavor as Milton's Paradise Lost. तो उनकी काफ़ी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जिसमें मॉडर्न का टच आता है या फिर उससे सिमिलर हैं. ओके, The evolution of Bengali literature started in the later half of the 19th century. The first truly romantic Bengali novel was Bankim Chandra Chatterjee, Durgesh Nandini, while the first Bengali novel of social realism was Piari Chand Mitra and Aladar Gharar Dulal. So, the leading novelist of the age was Bankim Chandra Chatterjee, who was the nation its national song Vande Mataram from his political novel Anand Mat. ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उस टाइम काफ़ी फेमस नोवेलिस्ट थे जिन्होंने हमारा वंदे मातरम भी कंपोज किया है, हमारा नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कंपोज किया है. नाउ दिस सेंचुरी ऑल्सो सो द एडवेंट ऑफ द पीरियोडिकल प्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिग्दर्शन, अ मंथली मैगजीन एंड समाचार दर्पण. और इस टाइम पर मैगजीन्स भी आने लगी थी और समाचार भी आने लगे थे. ड्रामा एंड लिटरेरी प्रोज ऑल्सो सो अ ह्यूज रिन्यूअल इन दिस एज, and the great dramatists of the 19th century were Girish Chandra Ghosh and Amrit Lal Bose and D.L. Rai, and some of the great prose writers included Debendranath Tagore and Ishwar Chandra Vidyasagar. तो काफ़ी इस टाइम पोइट्री जो थी काफ़ी ग्रो की. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ सेलिब्रेटेड पोइट जिसको सब जानते हैं, एक फेमस नॉवेलिस्ट थे, वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, ऐसे भी लिखते थे एंड लिटरेरी critic all rolled into one. He was the first Indian to receive the Nobel Prize. Who? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको क्या मिला? फर्स्ट इंडियन थे ये जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था अपनी एक एंथोलॉजी के लिए, दैट इज गीतांजलि. ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट्स इन पेंटिंग एंड आर्ट. अब पेंटिंग एंड आर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई? इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग विच कैन बी सीन इन टेम्पल्स, केव्स, मॉस्क्यूज एंड पैलेसेस. इंडिया काफ़ी रिच रहा है आर्ट एंड पेंटिंग में, जिसके एग्जाम्पल हम टेम्पल्स में, केव्स में, मॉस्क्यूज में और पैलेसेस में देख सकते हैं.
इंडियन रूलर हैव ऑलवेज बीन ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट। इंडिया में जितने भी रूलर रहे हैं वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, पेंटिंग के काफ़ी शौकीन रहे हैं। आर्टिस्ट हैव एडोन्ड कोर्ट्स ऑफ रूलर सच एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एंड मुगल एम्परर्स। जो आर्टिस्ट थे वो जो राजा महाराजाओं को की काफ़ी प्रशंसा करते थे, उनको खुश रखने के लिए उनकी पेंटिंग बनाते थे, ठीक है, जैसे मुगल एम्परर अकबर एंड जहांगीर। Since ancient times, different schools of art such as Mathura School of Art, the Gandhara School of Art and the Rajput School and the Mughal School have flourished। और इसी टाइम पीरियड में different school of arts जो हैं वो काफ़ी flourish भी हुए। Now next is changes in Indian art। Indian art में क्या changes आए? Raja Ravi Verma belonged to the family of the Maharaja of Travancore in Kerala and so he was addressed as Raja। ठीक है, राजा रवि वर्मा जो कि महाराजा फैमिली ऑफ द महाराजा ऑफ त्रवणकोर से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके नाम के आगे राजा लगता है। He tried to create a style that was both modern and national as we see him paint the themes from Indian mythology, but he had actually mastered Western art of oil painting and realistic life study। उनके जो पेंटिंग है, उनके जो आर्ट है, उनमें हम वेस्टर्न और इंडिया का काफ़ी मिक्सचर देखते हैं, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग थी, ठीक है, वो इंडियन कंसेप्ट पर, इंडियन मिथोलॉजी पर बेस्ड होती थी, लेकिन उसमें वेस्टर्न कलर्स, वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग इनका यूज़ किया जाता था। ही डिपिक्टेड ऑन कैनवास स्टोरीज ऑफ द महाभारत एंड रामायण। मैनी प्रिंसेस एंड आर्ट कलेक्टर्स डेकोरेटेड देयर पैलेस गैलरीज विद हिज पेंटिंग्स। तो बहुत सारे राजा महाराजा उस टाइम इनकी पेंटिंग से अपने पैलेस को डेकोरेट करते थे। Next is the Bengal School of Art। It was another influential school that flourished in India during the British rule in early 20th century। This school blended traditional Indian themes with the Western and emerging nationalist art। ठीक है, ये स्कूल जो था, बंगाल का जो स्कूल ऑफ आर्ट था, वो भी काफ़ी फेमस था ब्रिटिश रूल के टाइम पर। इस स्कूल में ट्रेडिशनल इंडियन थीम्स को वेस्टर्न एंड एमर्जिंग नेशनल आर्ट के साथ कंपोज किया गया था, का मिक्स किया गया था, ब्लेंड किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर एंड हैवेल एंड कोमरास्वामी वर important figures belonging to this school। कला भवन of Rabindranath Tagore and Visya Bharati at Shanti Niketan near Kolkata served as a center for the Bengal School of Painting। Next is Amrita Shergill and George Keat। Now this is another art movement flourishing during this period was led by Amrita Shergill and George Keat। They were well versed with modern European art and modern expression। ठीक है, इनको काफ़ी नॉलेज थी मॉडर्न यूरोपियन आर्ट की और एक्सप्रेशंस की। अमृता शेरगिल फिगर्स ऑफ women were purely Indian and her oil paintings were diverse in themes and George Keat used sweeping lines which had diverse colors। Next is प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे। उसके साथ साथ एक बॉम्बे का एक ग्रुप जो है वो काफ़ी फेमस हो रहा था, जिसमें फ्रांसिस न्यूटन सोजा, के.एच. आरा, एच.ए. वादे एंड एम.एफ. हुसैन जो हैं वो फेमस थे, पॉपुलर थे। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस। ब्रिटिशर्स के टाइम पर प्रेस भी काफ़ी डेवलप हुई थी। सम ऑफ द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर्स इन इंडिया वर स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश एंड मेनली फॉर द ब्रिटिश। जो पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए थे सबसे शुरू में अर्लीस्ट, वो ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किए थे और ब्रिटिशर्स के लिए ही होते थे, सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखते थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी एंड लेटर हाउएवर अ पावरफुल इंडियन प्रेस ग्रू। उसके बाद 19th सेंचुरी के बाद एक पावरफुल इंडियन प्रेस सामने आई, बोथ इन इंग्लिश एंड द इंडियन लैंग्वेजेस, जो दोनों में छापती थी, जो दोनों में प्रिंट करती थी, इंग्लिश में भी और इंडियन लैंग्वेजेस में भी। मोस्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स ईदर देमसेल्व्स स्टार्टेड और वर कनेक्टेड विद न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। इंडियंस बिकेम अवेयर एंड इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पावरफुल इंडियन प्रेस। तो जितने भी इंडियन थे, ठीक है, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, तो वो आपस में कैसे कनेक्टेड रहते थे, कैसे उनको इंफॉर्मेशन पता लगती थी ब्रिटिशर्स के बारे
बारे में? बिकॉज ऑफ द पावरफुल इंडियन प्रेस. इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द awakening the people and in disseminating information on various issues. Some important newspaper of the 19th century are, जैसे कि ये न्यूज़पेपर फेमस थे, केसरी एंड मराठा, जिसमें जर्नलिस्ट कौन फेमस था? बीजी तिलक. एंड हिंदू न्यूज़पेपर, जिसमें जी सुब्रमण्यम नायर. एंड इंडियन मिरर, एनएन सेन. ठीक है. उसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका, यंग इंडिया एंड वॉइस ऑफ इंडिया, जिनके ये फेमस जर्नलिस्ट थे. तो ये एक पावरफुल क्या थी? प्रेस थी, इंडियन प्रेस. Now here is a case study about the glimpse of architecture in Mumbai and Chennai. First is मुंबई, यानी मुंबई और चेन्नई में क्या आर्किटेक्चर में चेंजेस आ रहा था, क्या डेवलप हो रहा था. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मुंबई. बॉम्बे वॉज गिवन टू इंग्लिश किंग चार्ल्स II एज डॉरी ड्यूरिंग हिज मैरिज टू द पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगेंसा इन 1661. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बॉम्बे जो है वो इंग्लिश किंग चार्ल्स II को डॉरी में मिला था. इन 1688 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स वेस्टर्न हेडक्वार्टर फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे. और इसका फ़ायदा उठाकर 1688 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी क्या किया? शिफ्टेड इट्स वेस्टर्न हेडक्वार्टर, यानी सूरत में पहले हेडक्वार्टर किया था, अब उन्होंने बॉम्बे में शिफ्ट कर लिया, जिसके बदले वो किंग चार्ल्स II को कुछ रेंट देते थे. ठीक है. नाउ देयर आफ्टर मैनी न्यू बिल्डिंग्स बिगेन टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिटिश स्टाइल. और वहाँ पर बॉम्बे में बहुत सारे बिल्डिंग ब्रिटिश स्टाइल में कंस्ट्रक्ट की गई. कर्नल थॉमस कॉपर डिजाइंड द टाउन हॉल एंड द बिल्डिंग इन इज 200 feet long and 100 feet wide. The building was completed in 1833. The University of Bombay was established in 1857. ठीक है. एक तो टाउन हॉल बनाया गया ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे. एंड the universities were in the same year universities were established in the two other presidency towns of Calcutta and Madras. It was one of the first educational institution to be established following the Wood's dispatch on education in 1854. One of the most fascinating buildings of the British rule in the Gateway of India. Gateway of India जो कि बॉम्बे में है, ये भी ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई है. ठीक है. इट वॉज बिल्ड टू कॉमरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V इन 1911. और ये क्यों बनाई गई थी? जब किंग जॉर्ज V यानी ब्रिटेन के किंग ने 1911 में इंडिया में विजिट किया था, तो उस टाइम पर ये बनाई गई थी. इट वॉज डिजाइंड बाय जॉर्ज विटेट टू सिम्बोलाइज द मैग्निफिशेंस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड द कंस्ट्रक्शन वॉज completed in 1924 and the gateway was opened in December 1924 by the Viceroy Earl of Reading. Now the British constructed many monuments also to glorify their empire. The Chhatrapati Shivaji Terminus, the Elephanta Caves, the first railway line that was laid between Mumbai and Thane, which is still in use. ये सारी चीज़ें क्या है? मुंबई की हेरिटेज साइट हैं जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम रीड करते हैं चेन्नई. चेन्नई ऑल्सो फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर. चेन्नई में भी काफ़ी चेंजेस आए. अपार्ट फ्रॉम द वास्ट एंड ब्यूटीफुल मरीना बीच, सम ग्रेट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन द 20th century हैव बिकम लैंडमार्क्स इन चेन्नई. द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग लाइक फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक तो मरीना बीच जो कि काफ़ी फेमस है चेन्नई में, ब्रिटिशर्स के टाइम का है. ठीक है. उसके अलावा जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ठीक है, ये भी ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्ट किया था. वन ऑफ द अर्लीस्ट ब्रिटिश बिल्डिंग इन इंडिया एंड टुडे इट हाउसेज द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द सेक्रेटरीट. The High Court, built in 1892, is one of the largest judicial complexes in the world. Now, at the southern end of the Marina Beach is the St. Thomas Cathedral Basilica. The beautiful stained glass window of the basilica portrays the story of St. Thomas. ठीक है. तो ये सेंट थॉमस कैथेड्रल एक चर्च बनाया गया है, ये भी ब्रिटिशर्स ने बनवाया था. उसके अलावा चेन्नई की और भी बिल्डिंग हैं, जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉलेज, सर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स एंड चेन्नई सेंट्रल स्टेशन. नाउ डू यू नो, in the 1920s and 1930s,
Swiss French architect Le Corbusier visited India. He designed the beautiful buildings of Chandigarh. ठीक है, जिन्होंने चंडीगढ़ की beautiful building को डिज़ाइन किया. In modern Indian architecture, Indian elements of छज्जा, दैट इज़ वाइड रूफ, ओवरहैंग्स, जाली, एंड ये सारा जो सिस्टम है, ठीक है, ये यूरोपियन आर्किटेक्चर से लिया गया है. जैसे छज्जा, हम आगे बालकनी निकाल देते हैं, या फिर जाली लगाते हैं, सर्कुलर स्टोन, एप्रीचर एंड छतरी, फ्री स्टैंडिंग पेविलियंस वर इंटरमिक्सड विद यूरोपियन आर्किटेक्चर. इनको यूरोपियन आर्किटेक्चर के साथ मिक्स करके बनाया गया है. द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, एंड दिस नियो क्लासिकल प्रोजेक्ट which also contained a stupa-like dome was overseen by Sir Edwin Lancer Luton and the Indian Institute of Architects. Now let us recall the chapter. 19th century was the period when the actual literacy residence of Bengal took place, and artworks of different techniques also played a vital role in the colonial period. The development of press also served as a medium of propagation of nationalist ideology and a means of mobilization and consolidation of public opinion. In painting, different schools become popular in succession. Raja Ravi Verma was the earliest to experiment with the form of based on the themes drawn from the Indian mythology. His style was regarded as distinctively Western. And architecture under British also saw adaptation of Gothic and Greco-Roman style at many places like Mumbai, Chennai, etc. And this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.